Hello, how are you, my dear students? Welcome to the beautiful channel Padhai Ka Kavach. Myself, Tosip sir, and I welcome you all in this online education session organized by the Noblehood School. Students, as you know, since last two lectures of this particular unit, we have discussed about the manufacturing industries. Their classification is based on the raw materials. First is the agro-based industry, second is the mineral-based industry. So in this previous lecture, we have discussed about the many agro-based industries like cotton textile industry, jute industry, synthetic textile industry, and then after mineral-based industry, iron and steel industry, copper industries, as well as aluminium refining industry. So students, today we are going to discuss about the chemical industry, one of the very utmost importance of this kind of industry is that apart from chemical, there is other industries also there which is known as the chemical fertilizer industry. Basically the fertilizers which is majorly utilized inside the agriculture fields for the good production of crops. So let us start today's lecture about the chemical industry. Position of the chemical industries in India is very important because chemicals are playing a very crucial role in our everyday life. From the drugs to the various kind of substance like washing soda, baking soda, as well as the pharmaceutical drugs are very helpful to ourselves. So majorly chemical are of two types. Let us study about this. First is a organic chemicals, second is the inorganic chemicals. Petrochemical is the main organic chemical industries. It is used in the artificial fibers, artificial rubber, plastic goods, color, chemicals, and in the medicines. So students, major utilization of the petrochemicals as we observe is in the artificial goods. Organic chemical industry is founded near oil refineries and petrochemical centers. India has an important position in the world in the insecticide industry. Gujarat leads in the country in chemical industry. Ahmedabad, Vadodara, Ankleshwar, Bharuch, etc. are major centers of chemical industry. So students, these are the chemical industries center inside our Gujarat because Gujarat is leading in the chemical industry. After that, the chemical fertilizer industry. First chemical fertilizer factory of India was established in 1906 at Ranipat in Tamil Nadu. The development of this industry started when Fertilizer Corporation of India started the factory at Sindri. This industry is centered in Gujarat, Tamil Nadu, UP, Punjab, Kerala. These are the centers of this industry, chemical fertilizer industry. In particularly Gujarat, the factories producing chemical fertilizers are located at Kalol, Kandla, Hazira, Bharuch, Vadodara, etc. इसमें थोड़े जो फैक्चुअल नोट्स है वो आपको याद रखने हैं, जिसमें इनिशियली पहली केमिकल फर्टिलाइजर फैक्ट्री जो है वो इंडिया में 1906 में रानीपत तमिलनाडु के अंदर इस्टेब्लिश की गई. इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री स्टार्टेड, पहला कारखाना जो कृत्रिम खाद का चालू हुआ सिंदरी के अंदर, तभी से इसका उत्पादन बढ़ा. अलग अलग राज्यों के अंदर इसके सेंटर्स है जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब और केरला. स्पेसिफिकली गुजरात के अंदर जो साउथ गुजरात है और ईस्ट गुजरात है वहाँ पे इसके सेंटर्स ज़्यादातर लोकेटेड है. नाउ लेट अस फोकस ऑन द प्लास्टिक इंडस्ट्री. Plastic industry is also known as the sunrise industry. Please
टिक मार्क दिस लाइन कि प्लास्टिक इंडस्ट्री को सनराइज इंडस्ट्री भी कहा जाता है. देयर हैज बीन अ कांस्टेंट इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्लास्टिक. Nowadays student try to think that how much amount of plastic that we are using in our day to day life, from a can of a bottle to the pen. इन सारी चीज़ों के अंदर जो है प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है. इसकी वजह से प्लास्टिक की डिमांड जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. बिकॉज इट इज़ अ वाटर प्रूफ एंड कैट फिट इन टू एनी मोल्ड. इट इज़ यूज्ड इन पैकिंग केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा. सबसे महत्वपूर्ण बात, या तो आप खासियत भी कह सकते हो प्लास्टिक की, कि ये वाटर प्रूफ है. पानी की असर इस मटेरियल के ऊपर नहीं होती और किसी भी मोल्ड में, यानी कि किसी भी आकार के अंदर हम इसे ढाल सकते हैं. आप देख सकते हो कि जो पेन है उसके आउटर पार्ट्स भी प्लास्टिक से बनाए जाते हैं. बाल्टियाँ जो है, बकेट्स है, वो भी प्लास्टिक से बनाए जाते हैं. वाटर बॉटल्स है वो प्लास्टिक से बनती है. कई सारे टू व्हीलर्स की बॉडी जो है वो प्लास्टिक से बनती है. इलेक्ट्रॉनिक्स सामान ज़्यादातर प्लास्टिक से बनाया जाता है. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल हुए जाने वाले कई सारे पार्ट्स प्लास्टिक से बनते हैं. सो प्लास्टिक मटेरियल इज हैविंग अ ग्रेट 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 इंपॉर्टेंस इन अवर डे टू डे लाइफ. इंपॉर्टेंट सेंटर प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक्स आर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु, वडोदरा, वापी, कानपुर, कोयम्बतूर and Chennai. These are the centers which are producing the plastic material substance. After that, let us look on the cement industry. Cement is very inevitable in the construction of roads, dams, etc. in India. India ranks second after China in the cement production. सीमेंट के जंगल आजकल इस्तेमाल होया जाने वाला एक बड़ा सा वर्ड. लोग जो है वो कुदरती जंगलों को तोड़ के, कुदरती जंगलों का विनाश करके कृत्रिम जंगल जो है, जिसे स्पेसिफिकली सीमेंट के जंगल कहा जाता है, क्योंकि सीमेंट मटेरियल से ही बिल्डिंग्स बनती है, रोड्स बनते हैं, कंस्ट्रक्शन बनते हैं. तो इन सारी चीज़ों के अंदर सीमेंट का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है. तो सीमेंट का इस्तेमाल बहुत ही आजकल के ज़माने में हर एक कंस्ट्रक्शन के अंदर से लेके कई सारे डैम्स प्रोजेक्ट्स में, कई सारे कैनाल प्रोजेक्ट्स के अंदर, कई सारे पावर प्लांट्स मैन्युफैक्चर करने में इस्तेमाल होता है. तो सीमेंट जो है वो आजकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ जाने वाला एक मटेरियल है. डे टू डे इसकी खपत बहुत सारी होती है. जैसे कि हम जानते हैं कि मकान अगर किसी को बांधना हो तो सीमेंट के बिना सोच भी नहीं सकते. सीमेंट के ब्लॉक आजकल बहुत ही पॉपुलर है, सीमेंट ब्लॉक्स, क्योंकि सीमेंट ब्लॉक जो है उससे आज कंस्ट्रक्शन काम काफ़ी आसान हो गया है. सो this is the importance of the cement industry that we are discussing. It produces about 6% of the world production. मतलब भारत जो है पूरी दुनिया का 6% प्रोडक्शन सीमेंट का करता है. लाइमस्टोन, कोल, जिप्सम, बॉक्साइट, क्ले etc. are the raw material for cement industry. सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो है इन सारे रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है. The raw materials and the products have more weight, so the cement factories are located where the raw material is available in abundance. There is a fairly good development of this industry in गुजरात. सीमेंट जो है वो ज़्यादातर इन 4 चीज़ों से बनाया जाता है: लाइमस्टोन, कोल, जिप्सम, बॉक्साइट और क्ले. इन सभी चीज़ों का वज़न बहुत ही भारी होता है, इसीलिए सीमेंट इंडस्ट्रीज हमेशा उसी जगह पे लोकेटेड होती है जहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो बड़ी मात्रा में नज़दीक मिल जाए.
सीमेंट इंडस्ट्री का विकास जो है वो गुजरात में काफ़ी हद तक अच्छा हुआ है देखा जाए तो. So student, this is all about the mineral based industry. Iron and steel, aluminium refining, copper refining, chemical industry, chemical fertilizer industry, plastic industry, cement industry. So these are the industries which is based on a minerals. Now, after that, we will discuss about the industrial sector which is in a huge development nowadays. Transport equipment industry. World is moving to the another era of the transportation, कि जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हर एक लोगों के पास आजकल हम देखना चाहे तो 2 व्हीलर्स होते हैं, 4 व्हीलर्स किसी के घर में होते हैं, 3 व्हीलर्स भी होते हैं. कुछ लोगों के पास महंगी महंगी गाड़ियाँ होती है. पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल सरकार इतना प्रोत्साहित करती है लोगों को करने में. उसके साथ साथ प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स जो है वो भी अपनी बसेस चलाते हैं. उसके अलावा क्रूज़ चलती है दरिया के अंदर, शिप्स चलती है पैसेंजर. इसके अलावा एयरक्राफ्ट्स चलते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है, खास भूल गए ट्रेन्स, जो सबसे बड़ा यात्रिकों का पसंदीदा माध्यम है सफ़र करने का. सो इन सारे इक्विपमेंट का प्रोडक्शन जो है वो हम देखने जाने वाले हैं इस सेक्शन के अंदर. सो लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. You might have seen many types of vehicles for travel. Earlier, there were animals-driven vehicles which were very slow. जैसा हमें मालूम है कि पुराने ज़माने के अंदर जो है जो व्हीकल्स इस्तेमाल किए जाते थे वो प्राणियों के द्वारा चलाए जाते थे जो कि बड़े ही धीमे थे. Today in the modern era, vehicles with faster speed along with the development of roads have come in usage. रोड्स के डेवलपमेंट हुए, रोड का विकास हुआ, बड़े पक्की अच्छी सड़क, बिना कोई बम्प वाली, बिना कोई गड्ढे वाली सड़क जो है उनका निर्माण होने के बाद इस ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री का बड़ा ही अच्छा विकास हुआ. क्योंकि अगर रोड्स अच्छे होंगे तो लोग ट्रांसपोर्ट जो इक्विपमेंट्स है उसको लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे. अगर रोड्स ही सपोज अच्छे नहीं है तो लोग व्हीकल लेकर क्या करेंगे. The industry which produces such vehicles is known as the transport industry. Okay, so the industries which is producing the vehicles with a faster speed, this type of industry is known as the transport industry. Let us discuss first about the railway, the heart of Indian tourism and transportation. Railway services deserve appreciation of traveling in India. Railway manufacture the equipment of its own requirement by itself, such as railway engines, passenger coaches, goods coaches, etc. रेलवे है भारत की, वो अपने इक्विपमेंट अपने ज़रूरत के हिसाब से खुद ही बनाती है. जैसा कि रेलवे इंजन यानी कि गाड़ियों के इंजन, पैसेंजर यानी कि यात्रिकों के लिए जो डब्बे आते हैं वो, गुड्स कोचेस यानी कि माल ढोने वाले जो डब्बे होते हैं वो. दिस आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड प्राइवेटली. सरकारी तौर पे तो इसका उत्पादन होता ही है, लेकिन साथ साथ में खानगी तौर पे भी इसका जो है प्रोडक्शन उत्पादन ही होता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेलवे इंजन्स. फर्स्ट इज अ स्टीम इंजन विच वर यूज्ड इन एंशिएंट टाइम. सेकंड इज डीजल एंड थर्ड इज इलेक्ट्रिक इंजन्स. द स्टीम इंजन्स आर नाउ यूज्ड ओनली फॉर द हेरिटेज ट्रेन्स विच आर रन ओनली फॉर द टूरिज्म पर्पस. इन द शिमला कालका शिमला ट्रेन इज़ रनिंग ऑन दिस काइंड ऑफ इंजन. बिकॉज स्टीम इंजन जो है वो काफ़ी लो एफिशिएंसी वाले होते थे. इसमें ज़्यादा फ्यूल का इस्तेमाल करने के बावजूद भी इसका जो एफिशिएंसी है, इसका जो एफिशिएंट वर्क है वो नहीं मिल पाता था. सो नावेडेज दिस काइंड ऑफ इंजन्स आर ओनली लिमिटेड फॉर द यूज ऑफ हेरिटेज ट्रेन्स. डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स आर प्रोड्यूस्ड at Mihijam in Chittaranjan Locomotive Works in West Bengal, Diesel Locomotive Works at Varanasi and the Tata Locomotive Works at Jamshedpur. तो ये 3 अलग अलग जगह है कि जहाँ पे डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन मैन्युफैक्चर होते हैं. चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो सबसे पुराना है मिहिजाम के अंदर, के जहाँ पे डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन दोनों मैन्युफैक्चर होते हैं. वेस्ट बंगाल के अंदर डीजल लोकोमोटिव वर्क्स एट वाराणसी
and a Tata locomotive works at Jamshedpur. Passenger coaches are manufactured at Perambur, Bengaluru, Kapurthala and Kolkata. पैसेंजर कोचेस जो है यानी कि यात्रिकों के जो डब्बे हैं वो खास करके पेरम्बूर, बेंगलुरु, कपूरथला और कलकत्ता के अंदर बनाए जाते हैं. सो पूरा रेलवे का उद्योग जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर सेंटर्ड है, ऐसा भी हम कह सकते हैं. उसके बाद है रोड व्हीकल्स. बिफोर द इंडिपेंडेंस वी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर कार्स बाय असेंबलिंग द इंपोर्टेड पार्ट्स. आज़ादी से पहले जो कार का प्रोडक्शन होता था, जो फोर व्हीलर्स हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती थी, उसमें हमारे यहाँ पे कुछ प्राइवेट उद्योग नहीं थे. बाहर से पार्ट्स आते थे, यहाँ पे उसका असेंबलिंग करके कार बेची जाती थी. नाउ द फैक्ट्रीज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड साइकिल आर एस्टेब्लिश्ड इन अवर कंट्री. अभी तो देख सकते हैं कि हीरो से लेके ऑडी और लैंड रोवर तक टाटा ने जिसे टेक ओवर कर लिया, ऐसी कंपनी ने उसके उत्पादन जो यूनिट है वो भारत के अंदर बनाए हुए हैं कि जिसके अंदर ट्रक्स भी, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, साइकिल, ये सारी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग होता है. बट द रोड व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड मोस्टली बाय द प्राइवेट सेक्टर. इनसाइड द प्राइवेट सेक्टर more road vehicles are manufactured. India ranks 5th in the world in the production of commercial vehicles. Today, the vehicles and their spare parts manufactured in India are exported to foreign countries. आज जो vehicles के spare part इंडिया के अंदर बनते हैं वो फॉरेन में यानी कि आउट कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट होते हैं. ट्रैक्टर एंड साइकिल्स आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज स्केल एंड वी एक्सपोर्ट देम ओवरसीज. ट्रैक्टर और साइकिल के जो भी पार्ट्स है वो भारत में बड़ी ही ज़्यादा मात्रा में बनाए जाते हैं और उसकी बाहर के देशों के अंदर डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसे एक्सपोर्ट भी किया जाता है. देन आफ्टर द अनदर इंडस्ट्री इज द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, द लास्ट इंडस्ट्री ऑफ द ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट इंडस्ट्री. दिस इज द एंशिएंट इंडस्ट्री इनसाइड द इंडिया. इन रिसेंट टाइम्स there are centers to build ships of modern style. These are Visakhapatnam, Kolkata, Kochi, Mumbai, Marmagova, which are in public sector. Kochi and Visakhapatnam build ships of larger size. Private dockyards fulfill local needs. विशाखापट्टनम और कोची के अंदर बड़े साइज के यानी कि बड़ी जो स्पेसिफिकेशन वाले शिप्स हैं वो बनाए जाते हैं. वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग हेलीकॉप्टर्स. एयरक्राफ्ट बिल्डिंग यूनिट्स आर एस्टेब्लिश्ड एट बेंगलुरु, कोरापुट, नासिक, हैदराबाद एंड लखनऊ. द बिल्डिंग ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर पैसेंजर्स ट्रैवल हैज स्टिल नॉट स्टार्टेड इन इंडिया. हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर जो करने वाली इंडस्ट्रियां है वो भारत में अभी से निवेश करने लगी है. बहुत ही जूझ इंडस्ट्रीज है कि जो हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर करती है. और एयरक्राफ्ट, छोटे एयरक्राफ्ट बिल्डिंग करने की इंडस्ट्री खास करके इन सारे सिटीज़ के अंदर अवेलेबल है जो भी मैंने अभी नाम लिए. और जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, बोइंग है, जेट है, बोइंग जेट है, ये सारी जो भी कंपनियां हैं वो अभी तक भारत में आई नहीं है, इसलिए पैसेंजर एयरक्राफ्ट हम यहाँ पे बनाते नहीं हैं. So this industry is still not started inside the India. So student, this is all about for today's lecture. Shipbuilding industry, road vehicles, railway. These are the portion or these are the section in the transport equipment industry. And before that we have discussed in a detail about the chemical as well as chemical fertilizer industry, plastic and cement industry. Okay. So this is it for today. In next lecture we will discuss about the electronic industry, industrial pollution and environmental degradation and remedies to curb environmental degradation. So यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे. तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी. थैंक यू.